Hello students, on behalf of Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Agra region, myself Anil Kumar, Kendriya Vidyalaya number 3 Agra Cant, and once again welcome in the second part of fraction and decimal class 7. So अब तक जो हमने पढ़ा था in part 1 we have learned about the fraction. What are the concept of fraction? That is, fraction is a part of a whole. The different type of fraction, proper fraction जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं, then denominator improper fraction, mixed fraction, like fraction and unlike fraction. We have also studied about equivalent fraction, and now in this part I am going to tell you how to perform the basic operations on fractions. So addition, subtraction, multiplication and division. So how you are going to multiply a fraction by a whole number or a fraction by a fraction. Similarly, how to divide a whole number by a fraction and a fraction by another fraction. Similarly, how to divide a fraction by a whole number and one fraction by another fraction. So students, first concept is how to add the like fraction. Suppose you are having two like fraction and how to add it. So here you can see here I have two like fraction here. So यहाँ आप देख रहे हैं denominator is d, denominator is d. So this type of fractions are called like fraction. तो like fraction का अगर आप denominator लेंगे तो आप LCM लेंगे तो denominator क्या आ गया, d आ गया. So you are going to just add the numerator. तो if you want to add the like fraction, suppose 2 by 3 plus 1 by 3. So आपको करना क्या है, दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन, तो 3 और 3, सो एलसीएम इज 3. जस्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट द न्यूमरेटर, सो दैट इज 3 upon 3 एंड दैट इज 1. इज क्लियर? नाउ लेट अस द लुक एट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. अब देखिएगा यहां पर 1 upon 8 and 3 upon 8. So they both are like fraction. So इसमें आप देख रहे हैं this part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this part is what? This is 1 upon 8 part. And similarly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this part is 3 upon 8 part. So you are seeing here both these fractions are like fraction. So 1 piece plus 3 piece. So how much we are getting? So now just you see here मैं इसको दोबारा फिर से दिखा रहा हूं with the help of yellow color. Here you had taken 1 piece और यहां पर आपने लिया था how many pieces? 3 pieces. So 1, 2 and 3. So here you can see this piece was what? This piece was 1, 8 and this piece was, how many part was there? This piece was 3 upon 8. And if you add 1 piece plus 1, 2, 3 pieces, so what are you getting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many pieces you have got? 4 upon 8. Is it clear? So now we are going to learn about how to subtract the like fraction. Now you can see here in this figure I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So I have made this pizza into 12 equal parts. So this represent 11 upon 12 part. Now I have to just subtract 3 upon 12 parts. So कितने पीसेस हमें निकालने पड़ेंगे? 1, 2 और 3 पीस हमें निकालने पड़ेंगे. सो देखिए यहाँ पर ये ट्रक जो है आपका 3 पीसेस ले गया. सो आउट ऑफ 11 पार्ट 3 pieces are being removed. So 3 pieces are being removed. So what part is left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So how many parts are left? 8 upon 12. Is it clear? So just we can say if we want to add or subtract the like fraction, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए 11 upon 12 minus 3 upon 12. अभी just now I have shown. So what you are getting? 8 upon 12. And 8 upon 12 is what? 4 to the 8, 4 3 is 12. Is it clear? Now this is very simple to add and subtract a like fraction. तो उसके लिए just आप numerator जो आपका है उसको add और subtract कर देंगे. Is it clear? Now how to add unlike fraction?
अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर कि एक फ्रैक्शन के 5 इक्वल पार्ट्स हैं, एक फ्रैक्शन के आउट ऑफ देखिए 3/2 है, तो आप देख रहे हैं हियर यू कैन सी हियर दिस इज 3/8। तो यहाँ आपने एक पिज्जा के 8 पीस किए हैं एंड यू आर हैविंग 1 2 3 पार्ट, और यहाँ आप देख रहे हैं यू हैव जस्ट डिवाइडेड दिस पिज्जा इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, just 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So here this part is what 5/12 part. अब देखिए दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन होता तो जस्ट वी कुड ऐड दिस वन, ठीक है, लेकिन अब क्या है ये 3/8 पार्ट था और ये 5/12 पार्ट था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर नीचे 12 था तो इसको 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ 12 8 जा 96, इट बिकम्स 96। एंड सिमिलरली यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर 8 था तो इसको 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दिया, सो अगेन आई एम हैविंग 96 एज डिनोमिनेटर। अब आप देखिए दोनों क्या बन गए आपके 36/96 एंड दैट इज आल्सो 40/96। तो आप कह सकते हैं जो 3/8 फ्रैक्शन था पार्ट ऑफ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 36/96, और इसी तरह आपका ये जो है ये दैट इज इक्वल टू 40/96। नाउ सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम, सो 36 प्लस 40 व्हाट आर गेटिंग 76/96, इज क्लियर, एंड दैट यू कैन सिंप्लीफाई इट। तो यहां सिंपली देखेंगे, यहां पर देखिएगा यहां क्या है 5, तो हमने क्या किया इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड किया, उससे क्या गया 5 2 जा 10। अगेन यहां पर आप देख रहे हैं क्या है डिनोमिनेटर 2, तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 2, सो 2 5 जा 10, सो 3/5 is equivalent to 6/10 and 3/2 is equivalent to 15/10. Now they have become the like fraction, so the answer you're getting is 21/10 because 15 plus 6/10 and that is what 21/10. Is it clear? Now somebody asked me question कि अगर सर we have 3 like this, अगर आप 3 लेते 1/2 plus 3/6 plus 8/12. Now how you are going to just add all this, अगर 3 टर्म हो और तीनों अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो यहां देखिएगा डिनोमिनेटर क्या है 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। हालांकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद देख सकते हैं हम, बिकॉज 8/12 इसको आप 8/12 ना लेकर के जस्ट टेक इट एज 7/12। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसे लिया 7/12, क्लियर। सो अब आप देखेंगे 2 6 एंड 12, सो 2 1 जा 2 2 3 6 एंड 2 6 जा 12, अगेन 3 1 जा 3 सॉरी 2 3 जा 6 एंड अगेन 3 1 जा 3 एंड, तो यहां आप देख रहे हैं व्हाट एलसीएम यू आर गेटिंग 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 12। अब 2 कितने जा 12 होता है 6 जा, तो यहां क्या आएगा 6 1 जा 6 प्लस 6 2 जा 12 होता है, तो 3 2 जा क्या होता है 6 और 12 1 जा 12 होता है, तो यहाँ क्या आएगा 7 1 जा 7, सो 6 प्लस 6 12 12 प्लस 7 इज 19/12। तो नाउ यू हैव लर्न हाउ टू एड 3 और मोर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन अगर 3 या 3 से ज्यादा हो तो उसे कैसे ऐड करना है। नाउ हाउ टू कंपेयर अ फ्रैक्शन, देखिए एक पहला तरीका तो यह है कि आप उसको पहले लाइक में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और लाइक में कन्वर्ट करने के बाद जैसा कि अब आपको दिखाई दे रहा है कि हियर दिस पार्ट इज विच इज शोइंग हियर, आई एम शोइंग यू हियर इज 1 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट। तो यहां आप देख रहे हैं कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये पार्ट क्या दिखा रहा है आपका 1/16। इसी तरह यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो यहां देखिएगा ये क्या दिखा रहा है 3/16। इसी तरह ये क्या दिखा रहा है आपका 5/16। सो ऑल दिस आर लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बड़ा आसान है। अब आप देख रहे हैं कौन सा पार्ट जो है, अगर आपको मैं पिंक कलर वाला पिज्जा दूं तो आपके लिए कौन सा ज्यादा होगा, दिस विल बी मोर, तो 5/16 विल बी मोर देन 3/16 विल बी मोर देन 1/16, तो सबसे कम कौन सा है 1/16, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब इसमें तो इफ यू आर टू कंपेयर द फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम उसे लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था एडिशन वाले पार्ट में अनलाइक फ्रैक्शन के। अगर देखिए एक तरीका ये भी है, अगर 1 केक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स,
अब यहां पर क्या है, दे आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर बट न्यूमरेटर इज सेम. तो 1 cake is divided into 2 part, 1 cake is divided into 3 part, 1 cake is divided into 4 parts. So in which case you are getting more. तो जितना आपने पार्ट कम किया, अब आपने दो, यू आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग केक अमॉन्ग टू, आप भाई बहन हैं, आप आपस में बांट रहे हैं, इसके बाद भाई बहन है और मदर को बांट दिया. तो इसमें देखिएगा, यहाँ आपकी सिस्टर को मिला, यहाँ आपको मिला यू, यहाँ आपको मिला यू, सिस्टर को मिला, मदर को मिला, यहाँ आपको मिला और सिस्टर को मिला, मदर को मिला, फादर को मिला. यहाँ आपने केक को 4 हिस्सों में बांटा. तो आपको सबसे ज्यादा केक कब मिला था, जब आपको उस केक के 2 पार्ट किए थे. सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4. जितना किसी फ्रैक्शन को लार्जर नंबर से डिवाइड करेंगे, उतना ही सेम फ्रैक्शन को, उतना ही वो फ्रैक्शन या उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. तो देखिएगा, अब ये होल नंबर है, आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय फ्रैक्शन. तो 1/4, जैसा कि आप इसे कॉन्सेप्ट में समझेंगे, 1/4 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट. सो दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट. तो एडिशन जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, आपने पहले भी इसके बारे में पता किया था या आप पढ़ चुके हैं. व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? इट इज कंटिन्यूअस, जो है वो क्या है, रिपीटेड एडिशन होता है. तो अगर हम कहेंगे 2 इंटू 1/4, व्हाट डज इट मीन? 1/4 प्लस 1/4. और अब आपको लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना आता है, तो दैट इज व्हाट, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4. इसी तरह अगर आप कहेंगे 3 इंटू 1/4, तो 3 टाइम्स 1/4, 3 टाइम्स 1/4, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन. सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. सो एलसीएम इज 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3. तो सिंपल सी बात यह है कि इफ यू वांट टू जस्ट मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर. तो अब आप देखेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, और डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 इंटू 4. तो कभी भी जब आपको दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट यू आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. और इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी ऊपर देख भी लिया है कि वाकई में यही आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब देखिएगा 2/7, हियर द केक इज डिवाइडेड. ये देखिएगा, ये केक जो है, इसमें ये जो पार्ट शेडेड है, ग्रीन पार्ट, दैट इज 2/7. और ये जो पार्ट शेडेड है, आप देखेंगे, अगर इसको पूरे को हम 1 2 3 4 और 5, मैं केवल इस पार्ट को देख रहा हूं, आप सब पार्ट्स को मत देखिए. देखिए यहां पर अगर हम इक्वल पार्ट्स देखें तो कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 5 इक्वल पार्ट्स आर देयर. सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट 3/5. तो अगर आप कहेंगे 2/7 ऑफ 3/5 पार्ट ऑफ केक, तो देखेंगे यहां पर जो ये 3/5 है, इसका 2/7 क्या होगा, इसका 2/7 देखेंगे आप यहां पर, ये क्या आ गया, दिस पार्ट विल बी देयर. सो 3/5 जो आपका ये पार्ट पूरा था, 3/5 मतलब ये यहां से लेकर यहां तक था, इसका 2/7 पार्ट क्या हो गया आपका. सो दिस पार्ट हाउ में, व्हाट पार्ट इज देयर, 1 2 3 4 5 6/35. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, यू आर गेटिंग 6 and you are multiplying denominator with denominator, 7 5 are 35. So now you have learned how to multiply a fraction by another fraction. तो जब भी fraction को by a whole number, you have to multiply, just multiply numerator with numerator and denominator with denominator. इसी तरह जब आपको you have to multiply fraction with another fraction, just multiply numerator with numerator and denominator with denominator. Now next, how to divide द होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. अब देखिए यहां पर 8 पार्ट है या 8 केक हैं, आपको डिवाइड करना है हर केक को हाफ पार्ट में. हाउ मेनी पार्ट्स आर गेटिंग? सो हियर यू आर सीन हियर, एज यू आर सीइंग हियर, हाउ मेनी केक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 cakes are there, and you are dividing each cake into how many parts, 2 parts. So how many parts you are getting, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So 8 is divided into half part each. What you are getting? कॉन्सेप्ट क्या है आपका, आपको कितने केक मिले, कितने पीसेस मिले, 16. अब इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखिए,
डिवाइड जो साइन है इसको आप कर दीजिएगा, डिवाइड साइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और सेकेंड फ्रैक्शन जो है आपका वो क्या है, हाफ। सेकेंड फ्रैक्शन जो है वो क्या है आपका, हाफ। सो दिस सेकेंड फ्रैक्शन इज हाफ। इसको आप जस्ट रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा। तो 8 2 जा 16। तो अब आपने डिवाइड करने का एक सिंपल सा तरीका सीख लिया है कि हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस। तो अगर देखिएगा a अपॉन b एक फ्रैक्शन है, c अपॉन d एक फ्रैक्शन है, एंड वी आर डिवाइडिंग दिस, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है, और देख रहे हैं आप डिवाइड की जगह आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड जो फ्रैक्शन था उसको आपने, जो c अपॉन d था, उसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया। तो वी आर गेटिंग ad अपॉन bc। देखिए जिस तरह 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई हाफ। सो व्हाट आर गोइंग टू, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट, सो 2 अपॉन 3 एज इट इज यू आर राइटिंग, एंड डिवाइड की जगह आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन यू आर राइटिंग 2 अपॉन 1। सो दैट बिकम्स 2 2 जा 4। अब आप क्या करेंगे, यू आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। सो दिस इज हाउ you are just going to divide the whole number by a fraction. So student, I hope you have learned how to add the like fraction। तो जब किसी like fraction को हमें ऐड करना है वो कैसे ऐड करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, और डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज डिवाइड साइन की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म का हम रेसिप्रोकल लेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.